طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات کی شہروں کا اچھلتا لہو جوئے خون بن گیا، رات کی تلچھٹی ہے اندھیرا بھی ہے، صبح کا کچھ اجالا بھی ہے۔ دوستو نمسکار، ترقی پسند تحریک کا کارواں شرنکھلا کی 19ویں کڑی میں پیش ہے انقلابی شاعر مخدوم محی الدین پر ڈاکومنٹری۔ اس ڈاکومنٹری کی اسکرپٹ لکھی ہے لیکھک پترکار زاہد خان نے۔ پھول کھلتے رہیں گے دنیا میں، روز نکلے گی بات پھولوں کی۔ انقلابی شاعر مخدوم محی الدین کا شمار ملک میں ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی لڑائی لڑنے میں گزار دی۔ سرخ پرچم کے تلے انہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ داری کی اور آزادی کے بعد بھی ان کا سنگھرش اسمبلی و اس کے باہر لوکتانترک لڑائیوں سے لگاتار جڑا رہا۔ آزادی کی تحریک کے دوران انہوں نے نہ صرف سامراجوادی انگریزی حکومت سے جم کر ٹکر لی بلکہ عوام کو سامراج شاہی کے خلاف بھی بیدار کیا۔ مخدوم ایک ساتھ کئی مورچوں پر کام کر سکتے تھے۔ کسان آندولن، ٹریڈ یونین، پارٹی اور لیکھک سنگٹھن کے سنگٹھناتمک کاریہ سبھی میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ مخدوم محی الدین ایک ایسے شاعر تھے جن کے اگر ایک جیب میں رومال تھا کہ اگر محنت کرتے ہوئے پسینہ نکلے، عاجزی میں پریشان پسینہ نکلے، سنکٹ کے چھنوں میں اگر ماتھے پر پسینہ کی بوندیں چھلا جائے پہنچ سکے، اور کندھے پر لٹکی بندوق اس لیے تھی کہ ہاتھ میں اٹھا کر درندوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے مخدوم محی الدین کو محبت اور انقلاب کا کوی کہا گیا ہے۔ ایسا شاید کم ہی ہوگا جو ایک ساتھ اپنی زندگی میں محبت کو بھی مہتو دیتا ہو، اور محبت کرنے کے لیے جو زمین تیار کر رہا ہو وہ انقلاب کی زمین ہو، ایسی زمین جس پر کسی کے محبت کو کوئی چھین نہ سکے، کسی کی زندگی کے آرام میں کوئی خلل ڈال نہیں سکے۔ اس لیے مخدوم محی الدین اپنے جیون کال میں ہی کیودنتی پروش بن گئے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں اگر گٹار تھا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ یہ گٹار محبت کا پرتیک تھا اور تلوار بندوق سنگھرش کا۔ مخدوم محی الدین ہر اعتبار سے ایک مکمل آدمی تھے۔ جہاں وہ ان کی شاعری میں وہ سنجیدگی زندگی کے تعلق سے جو رویے ہیں ان کے وہ آتے تھے، وہیں وہ عام محفلوں میں وہ بہت ہی خوش مذاق، خوش دل اور ہنسوڑ قسم کے آدمی تھے۔ انہی مصروفیت کے دوران ان کی شاعری پرواز چڑھی۔ ادب اور سماجی بدلاؤ کے لیے سنگھرشرت نوجوانوں میں مخدوم کی شاعری آج بھی نئی جان پھونکتی ہے۔ اپنی زندگی کے آخر تک مخدوم جن سنگھرشوں سے جڑے رہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر شاعری انہی جن سنگھرشوں کے بیچ پیدا ہوئی تھی۔ مخدوم نے جاگیردار اور کسان، سرمایہ دار مزدور، آقا غلام اور شوشک شوشت کی کشمکش اور سنگھرش کو اپنی نظموں میں ڈھالا ہے۔ رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن۔ ملک میں یہ وہ دور تھا جب کسان اور مزدور اکٹھے ہو کر اپنے حقوق منوانے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ مخدوم کی قومی نظموں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جلسوں میں کورس کی شکل میں جب ان کی نظمیں گائی جاتی تو ایک سما بن جاتا، ہزاروں لوگ آندولت ہو اٹھتے۔
मखदूम की एक नहीं ऐसी कई नज़में हैं जो अवाम में समान रूप से मकबूल हैं। ये जंग है जंग आज़ादी के लिए इस नज़्म ने तो उन्हें हिंदुस्तानी अवाम का महबूब शायर बना दिया। मखदूम मोहिउद्दीन के दोस्त और तरक्की पसंद तहरीक के साथी सिबते हसन अपने खत में मखदूम को खिताब करते हुए लिखते हैं, लाखों किसानों और मजदूरों को तो ये भी नहीं मालूम कि इस नज़्म का लिखने वाला कौन है, लेकिन जलसों की जो रुदाद यहाँ आती है उसमें अक्सर लिखा होता है कि जलसे की कार्रवाई ये जंग है जंग आज़ादी से शुरू हुई, जिसे 5 लड़कों के एक जत्थे ने 10 लड़कियों की एक टोली ने मिलकर गाया। शायद नामानिगार को भी इसकी खबर नहीं कि ये नज़्म मखदूम की है। कबूल आम की ये सनद हज़ारों अदबी तनकीदों पर भारी है। मैंने खुद ऐसे कई जलसों में शिरकत की है और जब गाने वालों की टोली इस बंद पे पहुंचती है कि लो सुर्ख सवेरा आता है आज़ादी का गुलनार तराना गाता है आज़ादी का देखो परचम लहराता है आज़ादी का। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जलसे के मुख्तलिफ गोशों से यही मिसरे दोहराए गए हैं और सुनने वाले खुद सुनाने वालों में बदल गए हैं। परसों हमने स्टालिन की 64वीं सालगिरह जानते हो किस तरह मनाई? तुम्हारी शाहकार नज़्म स्टालिन की आवाज़ पढ़कर। इस नज़्म में तुम्हारी शायरी अपनी तमाम खुसूसियतों के साथ अपने बेपनाह खुलूस, अपनी बढ़ी हुई सदाकत पसंदी और खुद एतमादी जलवा अफरोज़ हुई है। तुम्हारी ये नज़्म इनकलाबी हकीकत पसंदी की बहुत अच्छी मिसाल है। पढ़ो तो सारे बदन में बिजली सी दौड़ जाती है, कुव्वत ज़दी अंगड़ाई लेकर उठती है और अमल के बाजुओं पर परवास करने लगती है। इन मिसरों में हमको पूरी जिंदगी का पैगाम दिया है। क्या मैं इस रज़्म का खामोश तमाशाई बनूं? क्या मैं जन्नत को जहन्नुम के हवाले कर दूं? क्या मुजाहिद न बनूं? ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले हम हिंद के रहने वालों की, महकूमों की, मजबूरों की, आजादी के मत वालों की, रहगानों की, मजदूरों की। बहरहाल आज भी कहीं मजदूरों का कोई जलसा हो और उसमें ये जंग है जंगे आज़ादी के लिए नज़्म को गाया न जाए, ऐसा शायद ही होता है। तरक्की पसंद तहरीक में कई मसाइल सामने आए। सियासत और अदब, समाज और अदब के माबैन क्या रिश्ता होना चाहिए, इस मसले को अगर पूरी तरह समझना है तो मखदूम से ज्यादा मौजू अदबी शख्सियत मुश्किल से मिलती है। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक, लेखक, संगठनकर्ता सज्जाद ज़हीर तो मखदूम की नज़मों और दिलकश आवाज़ पर जैसे फिदाही थे। अपनी किताब रोशनाई में इस नज़्म की तारीफ में वे लिखते हैं, ये तराना हर उस गिरोह और मजमे में आज़ादी चाहने वाले संगठित अवाम के बढ़ते हुए कदमों की आहट, उनके दिलों की पुरजोश धड़कन और उनके गुलनार भविष्य की रंगीनी पैदा करता था, जहां ये तराना उस जमाने में गाया जाता था। 4 फरवरी साल 1908 में तेलंगाना इलाके के छोटे से गांव अंडोल में पैदा हुए। अबू सईद मोहम्मद मोहिउद्दीन कुदरी उर्फ मखदूम के सिर से महज 4 साल की उम्र में ही वालिद का साया उठ गया था। उनके चचा ने उन्हें पाला पोसा। बचपन से ही संघर्ष का जो पाठ उन्होंने पढ़ा वो जिंदगी भर उनके काम आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मखदूम नौकरी के खातिर काफ़ी परेशान हुए।
बड़ी मुश्किलों के बाद हैदराबाद के सिटी कॉलेज में उर्दू पढ़ाने के लिए उनकी नियुक्ति हुई। नौकरी जिंदगी की ज़रूरत थी, लेकिन उनका दिल आंदोलन और शायरी में ही ज़्यादा रमता था। गुलाम वतन में उनका दिल आज़ादी के लिए तड़पता। किसानों और मज़दूरों के दुख दर्द उनसे देखे नहीं जाते थे। गुलाम हिंदुस्तान में सामंती निज़ाम की बदतरीन विकृतियाँ हैदराबाद रियासत में मौजूद थीं। मखदूम के सामने हालात बड़े दुश्वार थे और इन्हीं हालातों में से उन्हें अपना रास्ता बनाना था। मखदूम मोहिउद्दीन के नौजवानी का दौर वह दौर था जब मुल्क में ही नहीं, दुनियावी स्तर पर उथल पुथल मची हुई थी। दुनिया पर न सिर्फ साम्राज्यवाद का खतरा मंडरा रहा था, बल्कि फासिज्म का खतरा भी सिर उठाने लगा था। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवान आज़ादी के साथ साथ ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो मुल्क को समाजवाद की ओर ले जाए। दश्त की रात में बारात यहीं से निकली, राख की रंग की बरसात यहीं से निकली, इनकलाबात की हर बात यहीं से निकली, गुनगुनाती हुई हर रात यहीं से निकली। उस वक्त दुनिया भर में साम्राज्यवाद और फासिज्म के नापाक गठजोड़ के खिलाफ तरक्की पसंद हलकों के मोर्चे की बहुत चर्चा थी। नौजवान मखदूम का इस मोर्चे के जानिब खिंचना लाजमी था। लखनऊ के ग्रुप यानी प्रगतिशील लेखक संघ से उनकी मुलाकात हुई और वे इसके मेंबर बन गए। प्रगतिशील लेखक संघ में आने के बाद मखदूम की सोच में और भी ज़्यादा निखार आया। उनकी कलम से साम्राज्यवाद विरोधी नज्म आज़ादी ये वतन व सामंत विरोधी हवेली, मौत के गीत जैसी कई क्रांतिकारी रचनाएं निकली। एक बोसीदा हवेली यानी फरसूदा समाज ले रही है नज़ा के आलम में मुर्दों से खिराज। एक मुसलसल कर्ब में डूबे हुए सब बामोदर, जिस तरफ देखो अंधेरा, जिस तरफ देखो खंडहर। को भर का के कुछ रात कटे। उनकी शायरी में आप देखेंगे कि एक तरफ तो रुमानी इश्क का शायरी भी है, लेकिन इश्क ऐसा है कि आप उसके अंदर पॉलिटिक्स भी दिखा सकते हैं। आए खुदाए दो जहां है वो जो हर एक दिल में है, देख तेरे हाथ का शाहकार किस मंजिल में है। मखदूम के बगावती ज़हन ने आगे चलकर उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी और आंदोलनों की राह पर ला खड़ा किया। 1930 के दशक में हैदराबाद में कॉमरेड एसोसिएशन का गठन हुआ। मखदूम इससे शुरू से ही जुड़ गए थे। इस संगठन के जरिए मखदूम कम्युनिस्टों के संपर्क में आए। साल 1936 में वे बाकायदा पार्टी के मेंबर बन गए। हामिद अली खादरी, इब्राहिम जलीस, नियाज हैदर, शाहिद सिद्दीकी, श्रीनिवास लाहौरी, कॉमरेड राजेश्वर राव, सैयद आजम कुंदमीरी, गुलाम हैदर मिर्जा और डॉक्टर राज बहादुर गौर वगैरह के साथ आगे चलकर उन्होंने काम किया। 1939 में दूसरी आलमी जंग छिड़ने के बाद मुल्क में मजदूर वर्ग के आंदोलनों में काफ़ी तेजी आई। मखदूम भी ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हो गए। मजदूरों के बीच काम करने के लिए उन्होंने सिटी कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा तक दे दिया। आलमी जंग का जब आगाज हुआ तो मुल्क की अवामी तहरीकों पर भी हमला हुआ। इन हमलों से तहरीक कमज़ोर होने की बजाय और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरी। साम्राज्यी तबाहकारी, हिंसा और अत्याचार के माहौल की फैज़ अहमद फैज़ और मखदूम ने अपनी नज़मों में बड़े पुरअसर अंदाज में अक्कासी की। साम्राज्यी जंग के दौर में मुश्किल से आधा दर्जन ऐसी नज़में कही गई होंगी जिनसे जंग की असल हकीकत वाज़ेह होती है, और उनमें भी आधी से ज़्यादा मखदूम की हैं। मसलन जुल्फ़े चलीपा, सिपाही, जंग, मशरिक और अंधेरा। जिंदगी की अब कहीं हलचल नजर आती नहीं, बरहमी जुल्फ चलीपा में कभी देखी न थी। पी और अपने हाथ से पी लेके सरमाए का नाम, मौत का लबरेज सागर अरसे हाजिर के गुलाम। अज़्म आज़ादी सलामत जिंदगी पाइंदाबाद, सुर्ख परचम
اور اونچا ہو بغاوت زندہ باد۔ سپاہی نظم میں مخدوم جنگ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کون دکھیا ہے جو گا رہی ہے، بھوکے بچوں کو بہلا رہی ہے۔ وہیں اپنی جنگ نظم میں مخدوم نے کہا: جنگ نظم حالانکہ ان کی پہلی سیاسی نظم تھی، پھر بھی یہ نظم فاشزم کے خلاف اردو شاعری کی پہلی صدائے احتجاج بنی۔ اس نظم کے بعد اردو ادب میں اور بھی ایسی کئی نظمیں لکھی گئیں۔ ملک کی آزادی کی تحریک کے دوران انگریزی حکومت کا ویرودھ کرنے کے جرم میں مخدوم کئی مرتبہ جیل بھی گئے، پر ان کے تیور نہیں بدلے۔ انگریزی سرکار کا جب زیادہ دباؤ بنا تو انہوں نے انڈر گراؤنڈ رہ کر پارٹی اور یونینوں کے لیے کام کیا۔ تمام سنگھرشوں کے بعد آخرکار ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد بھی مخدوم کا سنگھرش ختم نہیں ہوا۔ آندھرا میں جب تلنگانہ کے لیے کسان آندولن شروع ہوا تو مخدوم پھر کیندری بھومکا میں آ گئے۔ تلنگانہ کے سشستر سنگھرش میں انہوں نے پرتیکش بھاگیداری کی۔ آندھرا اور تلنگانہ میں کسانوں کی بیداری کے لیے مخدوم نے جم کر کام کیا۔ پھر کسانوں میں کام کرنا شروع کیا تو جیل چلے گئے، بہت دنوں تک قید تنہائی میں رکھے گئے، بہت ٹارچر ہوا، لیکن شعر شاعری نہیں چھوٹی۔ کاغذ پینسل کچھ نہیں، کوئلہ مل گیا، اتفاق کوئلہ لے کے پوری نظم دیوار پر لکھ ڈالی۔ تلنگانہ باغی جاں باجان کیور جیسی نظموں میں انہوں نے تلنگانہ کی کھل کر طرفداری کی۔ دیار ہند کا وہ راہ بر تلنگانہ، بنا رہا ہے نئی ایک شہر تلنگانہ، بلا رہا ہے باسمت دیگر تلنگانہ، وہ انقلاب کا پیغام بر تلنگانہ۔ مخدوم محی الدین سال 1941 میں بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے ہول ٹائمر بن گئے۔ انہوں نے کامریڈ روی نارائن ریڈی کے ساتھ مل کر سی پی آئی کی حیدرآباد اکائی کی استھاپنا کی۔ آگے چل کر مخدوم محی الدین پارٹی اور پارٹی سے جڑے دوسرے آنوشنگک سنگٹھنوں میں بھی نیترتوکاری بھومکا میں رہے۔ آل حیدرآباد ٹریڈ یونین کانگریس AHTUC کی ایک شاخا کے وہ ادھیکش بھی بنے۔ تو وہیں 1946 میں انہوں نے اکھل بھارتی ٹریڈ یونین کانگریس AITUC کے ادھیکش کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ حیدرآباد میں نظام کی حکومت کے خلاف سال 1946 سے لے کر 1950 تک جو تلنگانہ میں سنگھرش ہوا، اس میں بھی مخدوم محی الدین کی بھاگیداری رہی۔ وہ آندولن کے اہم لیڈروں میں سے ایک تھے۔ اپنی شاعری سے وہ عوام کو ہمیشہ بیدار کرتے رہے۔ تلنگانہ کی جنگ آزادی آج ان کی انقلابی نظمیں اسی ہنگامے خیز دور کی ہیں۔ اپنی انقلابی سرگرمیوں کے دوران مخدوم کئی بار جیل گئے تو کمیونسٹ پارٹی پر پابندی کے چلتے انہیں پولیس سے بچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ بھی رہنا پڑا۔ اختر حسن، آپ کا اخبار پیام روزانہ یہ لکھ رہا ہے کہ تلنگانہ کے باغیوں کو اپنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے کیونکہ پولیس ایکشن کے بعد صورتحال بدل گئی ہے۔ یہی رائے کامریڈ روی نارائن ریڈی کی ہے، وہ تو تلنگانہ کے لیجنڈری ہیرو ہیں۔ آج اگر مخدوم کو ہم یاد کرتے ہیں، اس لیے یاد نہیں کرتے ہیں کہ مخدوم کے جنم دیوس کو منائے، اس لیے نہیں کہ مخدوم کی شاعری کے کیول گیت گائے، فلم میں بھی گیت گائے، مخدوم کے گیتوں نے فلم میں بھی جا کے اپنی پرسدھی پائی، کھیاتی پراپت کیا، لیکن مخدوم کی کھیاتی وہ نہیں ہے۔ مخدوم کی کھیاتی ہے کہ جیون کو بہتر بنانے کے لیے اگر سنگھرش کرنا ہے تو اس سنگھرش کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو دھرتی پر ایک ویر واپڑا کی طرح سنگھرش کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ قائدانہ صلاحیت اور رہنمایانہ مزاج کی حامل شخصیت کا نام ہے مخدوم محی الدین۔ لیکن انہوں نے اپنی وچاردھارا اور ستا کے خلاف سنگھرش کرنا نہیں چھوڑا۔ اپنی وچاردھارا اور اصولوں ہی کے چلتے ملک کی آزادی کے بعد بھی وہ جیل گئے۔ ترقی پسند شاعری کو جن شعراء نے بصارت اور بصیرت کے ساتھ ترانوں و ترنم سے گرمایا، ان میں مخدوم محی الدین کا نام ایک آتشی مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ مخدوم نے کہا دیپ جلتے ہیں کہ چتا جلتی ہے، اب کی دیوالی میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
अब दिवाली आती है, चली जाती है, महलों में दीप जलते हैं और झोपड़ियां सिसकती है। इसलिए मखदूम की दिवाली तब आएगी जब झोपड़ियों में रोशनी होगी। सन 1943 में जेल से रिहा हुए और ट्रेड यूनियन के कामों में लग गए। सन 1946 में उनके खिलाफ फिर वारंट जारी हो गया और वो रूपोश हो गए। उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड जिंदगी बम्बई, शोलापुर, हैदराबाद में गुजारी। जेल से रिहा होने के बाद मखदूम ने हैदराबाद शहर से अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन अफसोस अवाम के इस महबूब लीडर को उसमें शिकस्त हासिल हुई। अलबत्ता हुजूर नगर में जब एक उपचुनाव हुआ तो वे उसमें कामयाब रहे और उन्होंने जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद हुए चुनाव में मखदूम मोहिउद्दीन आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। साल 1956 से लेकर 1969 तक वे विधान परिषद सदस्य रहे और विधान परिषद में उन्होंने सूबे के आम आवाम के बुनियादी मसलों को जोरदार तरीके से उठाया। आगे चलकर विधान परिषद में वे विपक्ष के लीडर भी बने। सन 1956 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ने मखदूम को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अपना उम्मीदवार बनाया और वो अपोजिशन लीडर हो गए। असेंबली की दरो दीवार में आज भी उनकी आवाज सुनी जा सकती है। मखदूम 1958 में सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के लिए चुने गए। वे पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़े मकबूल लीडर थे। खासतौर पर मजदूरों और किसानों के बीच उनकी बेहद मकबूलियत थी और ये मकबूलियत उन्हें कोई ऐसे ही नहीं मिल गई थी। मजदूरों और किसानों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जनाबे वाला, ये ख्याल गलत है कि असेंबली में आ जाने के बाद हमने जनता को भुला दिया है। हमारी लड़ाई अंदर और बाहर दोनों जगह जारी है और जारी रहेगी। मैं मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, मेरा बर्थ ऑफ डेट 1928 है। मेरे और बड़े हजरत मोइनुद्दीन साहब को हम बड़े हजरत के नाम से पुकारते थे। मेरा उनका अंडरग्राउंड पीरियड से लेके उनके इंतकाल तक, बल्कि इंतकाल के वक्त मैं ही दिल्ली में उनके साथ था। बाज़ बातें उनके ताल्लुक से जो बहुत से लोगों को मालूम भी हैं और ऐसी भी बातें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम है, तो मैं कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो न सिर्फ एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, बल्कि एक अच्छे अपने बच्चों के वालिद भी थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उनका बड़ा बच्चा कहीं बगैर किसी को बोले के चला गया था। उस दिन मैंने मखदूम साहब की हालत देखी, कितना वो परेशान थे। जब तक कि वो बच्चा मिल नहीं लिया उनसे, जब तक वो इंतहाई परेशान थे। मेरा उनका जो ताल्लुक़ है वो अंडरग्राउंड पीरियड से है और फिर मैंने वहाँ उनको देखा है। अंडरग्राउंड पीरियड में जब हम सब सो जाते थे अपने घर में, वो अकेले एक कुर्सी पे बैठे रहते थे, कुछ पढ़ लेते हुए, सिगरेट पीते हुए, और जब तक कि हम सवेरे उठ नहीं जाते थे वो बैठे रहते थे और जब हम उठ जाते थे तो वो सो जाते थे। और हर एक को बहुत ही करीब से जानते थे, बहुत ही करीब से, अपने हर कॉमरेड को अपने बहुत करीब से जानते थे। और मेरा घर तो मैं भी चूँकि ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में रहता था, तो करीब जब भी वो हैदराबाद में होते थे उनसे मुलाकात होती थी। बात सुनाऊं तो आपको हैरत होगी कि मखदूम कैसे थे। एक दफ़ा मुझे हार्ट अटैक टाइप की कुछ चीज़ हो गई, तो वो मखदूम साहब को मालूम हुआ। तो आप देखिए कि सुबह सवेरे हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर मन्नान थे उनको लेके घर पे आ गए। ये ऐसा ही आदमी कर सकता है जो अपने कॉमरेड से मोहब्बत रखता है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत से, हर एक के साथ। आपको और एक चीज़ बताता हूँ, वो क्या जिद्दी भी थे। जिद्दी इस तरह से थे कि जब मेरा बड़ा लड़का सज्जाद ज़हीर, जब उसको रशिया में पढ़ने के लिए सीट दिलाने का था, उन्होंने नाम भिजवा दिया यहाँ से। नाम भिजवा देने के बाद बहुत से लोगों ने उनको कैंसिल करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने दे दिया है और वो नाम यकीनन यहाँ से जाएगा। मैं आपसे और एक कहूँ कि मैं जब बच्चे को छोड़ने के लिए गया, दिल्ली गया था, तो उसी वक्त मखदूम साहब भी, गिरी साहब चूँकि उस वक्त चुने गए थे उसी दिन,
तो मखदूम साहब भी वहीं पे दिल्ली में थे। तो मैं आसिफ अली रोड पे जो ऑफिस है उसमें मैं ठहरा हुआ था, तो मखदूम साहब कहीं और ठहरे हुए थे। तो डॉक्टर राज बहादुर गौड़ पे चीखने की आवाज़ें आई कि मोइन कहाँ है तुम, मोइन कहाँ है तुम। बोला ये बड़े इज्जत की से आ गए, बोल के नीचे जब मैं भागा तो बोले कि चलो। गाड़ी में बिठाए तो मखदूम साहब हैं और मुझे घूर रहे हैं बस। तो जाके उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में शरीक करवाए। शरीक करवा देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही खराब हालत है। लेकिन जब सब चले गए तो मैं और मखदूम साहब दोनों ही गए। उनको जो बेड दिया गया था, जो रूम दिया गया था, उसमें हम थे। उन्होंने कहा कि अखबार सुनाओ। तो मैं अखबार सुना रहा था तो मस्जिद अक्सा के पास आके मैं ज़रा रुक गया। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो कि तुमको अपना पहला काबा मालूम नहीं है, काबे का नाम नहीं। मैंने कहा नहीं बड़े सर, ऐसा यहाँ पे स्प्रिंग में कुछ गड़बड़ दिख रही है इसलिए मैं झिझक गया यहाँ पे। इससे पता चलता है कि उनके दिल में उनको क्या क्या चीज़ों की मालूमात थी और ये तमाम मालूमात उनको बहुत ही अच्छी तरह थी। और वो मेरी बीवी जो ज़हीरुन्निसा बेगम थी, उनको अपनी बेटी बोलते थे। तो मैं बोलता था जब आप उनको बेटी बोलते हैं तो मैं आपका दामाद हुआ। नहीं ये बात मत कीजिए, आप कामरेड हैं, ये भी हमारी बेटी है। इस तरीके से मजाक में बहुत सी बातें बोलती थी। आशिक़-ए-ज़ार अहमद अली सन 1947 के बाद जब जेल से निकले तो वो शमशीर बरहना बन चुके थे, नंगी तलवार। वो सीधे तेलंगाना पहुंचे, जहाँ के किसानों ने जमींदारों, देशमुखों और जागीरदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। मखदूम का एक शेर, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। लोगों ने इस शेर को जरा सा बदल, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो अपने जमाने को साथ लेके चलो। तो वो हमारे दोस्त भी थे और अच्छे वालिद भी थे। दोस्त इस नाते से कि जब हम कभी कोटिंग के सिलसिले में कैंप्स को जाया करते थे तो वो सबसे पहला सवाल करते किन किन लोगों को आपने दोस्त बनाए। फिर आहिस्ता से बाद में पूछे थे कितनी लड़कियां दोस्त बनी। हम 100 अंडरग्राउंड थे, दिन में तो कहीं जाने का सवाल पैदा नहीं होता था। तो खाने पे शर्त चाहिए। ज़हीर से उन्होंने कहा कि तुम कितना खा सकते हो। तो ज़हीर ने कहा कि मैं 3-4 फुलके खा सकती हूँ। तो बोले नहीं, तुम 8 रोटी खाना। 8 रोटी के बाद 6 के बाद रोक दिए और उसके बाद फिर उनको हाजिमे की दवाएं पिलाते हुए वो बैठे रहे। बात ये बात ऐसी खुसूसियात थी उनकी जो हम कभी भूल नहीं सकते। और मुझे फ़ख्र है कि उनकी ज़िंदगी में इस नसीब में साथ था, बल्कि उनकी मौत के वक्त मैं अकेला ही उनके पास था। एक दफा कैंप से वापस आया तो बोलने लगे जनाब आपके खुतूत बहुत आ रहे हैं। तो मतलब ठीक है, दोस्त बनाए हैं तो खुतूत आएंगे ही। इसमें कितनी लड़कियों के खुतूत हैं तो आप देख लीजिए जितने। नहीं मैं आपके खुतूत देखना नहीं चाहता, है कितने गिन के बोल दीजिए। मैं 10 में से 7 हैं। तो ठीक है चलिए। मखदूम उस वक्त मजदूर तहरीक से किस दीवानगी की हद तक मुब्तला थे, उनके एक साथी अली सरदार जाफरी अपने एक मजमून में लिखते हैं। मखदूम रोज बरोज मजदूरों के काम में डूबता गया। उसने अपना दिलो दिमाग, रूह, सब कुछ मजदूरों की तहरीक को दे दिया। उसने ये राज जान लिया था कि दुनिया को मुनज़्ज़म मजदूर तबके की जद्दोजहद के सिवा और कोई चीज़ निजात नहीं दिला सकती। अब उसे सिर्फ एक धुन थी, मजदूर तहरीक की तंजीम, हैदराबाद की शख्सी इस्तेबदादी हुकूमत से निजात, हिंदुस्तान की आज़ादी। मखदूम की शायरी जब अपने शबाब पे आ रही थी तो वो अमली काम में इतना गर्क हो गया कि उसे शेर कहने की फुर्सत नहीं रह गई। उसे खाना खाने का वक्त भी मुश्किल से मिलता था। इसके बाद जब कभी मखदूम से मुलाकात हुई तो मैंने महसूस किया कि वो अदब, आर्ट और अदब की बातें ज़रा कम करता है। अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा मज़दूरों, किसानों और उनके बच्चों की बातें करता है। वो गरीबों की ज़िंदगी की तवील दास्तानें सुनाता था, मज़दूरों के बेपनाह खुलूस की कसीदा खानी करता था। जितने भी तरक्की पसंद बड़े शायर गुजरे हैं, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, तो उनमें मखदूम मोहिउद्दीन को ये इम्तियाज हासिल है कि वो अवाम के शायर थे। कॉमरेड्स और साथियों, मैं 1965 में पार्टी का मेंबर बना स्टूडेंट मूवमेंट के थ्रू।
उस वक्त कमेट मखदूम मोइनुद्दीन सिटी के सेक्रेटरी थे। तो उस वक्त अवामी तहरीकात बहुत चलते थे। एक अवामी तहरीक मुझे आज भी याद है, 1 रुपये में 1 किलो चावल, उसके नाम पर ये गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की है, जिसमें हजारों सैकड़ों नहीं हजारों लोग पार्टिसिपेट किए। तो उसके बाद खुद चीफ मिनिस्टर आके बोला कि हाँ आप है ना अपना बराए करम अपना भूख हड़ताल ख़त्म कर दीजिए, हम इसके बारे में जो कदम पेशकदमी करना है हम ज़रूर उठाएंगे बोल। खैर वो तय खुना दे के उनकी भूख हड़ताल ख़त्म हुई समझिए। और उसके साथ साथ जो है ना, चूँकि वो एक बहुत अजीम ट्रेड यूनियन लीडर थे, अपने रियासत हैदराबाद जो निज़ाम स्टेट है, ट्रेड यूनियन की बुनियाद डालने वालों में मखदूम मोइनुद्दीन साहब है। हुसैनी अलम में एक बटन फैक्ट्री से उन्होंने शुरू किया। वो बढ़ते बढ़ते जो है ना, आजम जाई मिल्स में भी यूनियन बनी, आरटीसी यूनियन बनी, चारमार सिगरेट फैक्ट्री बनी, उसमें भी यूनियन बनाई है। यहाँ पर जो पार्टी की जो बुनियाद जो है ना, कॉमरेड एसोसिएशन के नाम पर कॉमरेड मखदूम, कॉमरेड राज बहादुर गौड़ा, हसन अली मिर्जा साहब 5 लोग मिलके यहाँ पर शुरू किए थे। तो यहाँ पर पार्टी की बुनियाद उन्होंने डाली। खैर मैं तो कई ज़माने के बाद जो है ना 1965 में जब स्टूडेंट था, तो हमारी स्टूडेंट ब्रांच जो है ना इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांच थी, 120 मेंबर थे। तो उस वक्त वो भी हमको बराबर गाइडेंस देते थे। तो मैं उनके याद में 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि जिस वक्त वो हुजूर नगर के एमएलए बने, बहुत बड़ा जुलूस उनकी शान में ना मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए हज़ारों लोग पार्टिसिपेट किए। तो जो फूल के हार उनको डाले गए थे, तो पार्टी ने समझा क्यों ना ये फूल का हार हराज किया जाए, चूँकि इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा पार्टी को था। तो 3 फूल के हार पे, चूँकि फूल के हार की कीमत जो है ना 1 रुपया 2 रुपये होंगी बमुश्किल, मगर एक फूल के हार पे 5 मिला, बाद में सेकंड 10, बाद में 15,000 ऐसा। तो पार्टी को जो है ना 3 फूल के हार में जो कम से कम जो है ना 30,000 के करीब पैसे मिले। तो उससे उनकी बेपनाह मकबूलियत का अंदाज़ा लगाइए हम। और जिस ज़माने में वो एमएलसी थे, तो मुझे याद है मैं उनके साथ जो है ना वियतनाम के हिमायत में हम जुलूस निकाले, बहुत बड़ा जुलूस असेंबली की तरफ। तो हम जो है ना स्पीकर को याददाश्त देना चाह रहे थे, तो पुलिस जो है ना 1 किलोमीटर दूर पे रोक दी। तो हम कार्डन तोड़ने के लिए गए, तो बेपनाह जो बर्बरियत के साथ जो लाठीचार्ज करे, जिसका शिकार है ना इवन उस वक्त एमएलसी थे, वो भी उसका शिकार हुए। हमारे मखदूम मोइनुद्दीन साहब फौरी काउंसिल में जाके चेयरमैन को बोले कि ये बर्बरियत क्या है, हम एक मजलूम अवाम और कौम के लिए जो उनकी हिमायत में जुलूस निकाले, तो आपको एक मेमोरेंडम देने के लिए आने के लिए पुलिस है ना रोकना, उसके बाद लाठीचार्ज करना, ये क्या तरीका है ये। वो मुझे अभी आज भी याद है, पहली मरतबा लाठीचार्ज का मैं भी शिकार हुआ था। इसके बाद मैं कई जो अवामी तहरीकात में उनके साथ रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ। और हमारी सिटी ऑफिस में एक बहुत बड़ा तोगरा उनका शेर था, बिसाते रक्स से, इलाही ये बिसाते रक्स और भी बसीत हो, सदाए तीशे कामरा हो कोकन की जीत हो। तो ये इतना पर्शनाइज था, हमको समझ में नहीं आता था। हर मरतबा पढ़ते थे क्या इसका मतलब क्या है बोल। तो एक मरतबा राज बहादुर गौड़ साहब को पकड़ के मैं पूछा इसका मतलब समझाइए। जब वो मतलब उसका बोले तो हम बहुत बिल्कुल शशद हो गए कि कैसे मेहनत और मोहब्बत का उन्होंने तस्करा किया। एक तरफ कोकन की जीत हो का मतलब फरहद की शीरी के साथ फतेह होना, और या ही इलाही ये बिसाते रक्स और भी बसीद हो, यानी एक लिहाज से क्लास स्ट्रगल और रोमांटिज्म दोनों को। तो ये जो ना इस किस्म की मिसाल कोई दूसरे शायर के पास नहीं मिलती। तो एक बहुत अजीम शायर थे हिंदुस्तान के, और बैनुल-अक़वामी ट्रेड यूनियन लीडर थे, और उसके साथ साथ पार्टी के सच्चे कारकुन थे। जब भी कोई मिसरा या शेर हो जाता तो सारे अफराद खानदान को जमा करके वो सुनाते थे। एक चमेली के मंडवे पहले जब उनकी नज्म हुई थी 4 अगर, तो उसको उन्होंने तमाम अहले खानदान के साथ बैठकर उन्होंने उस नज्म को सुनाया था हम लोगों को। चारा साजों को भी बुलवाओ के कुछ रात कटे, कोई जलता ही नहीं। एक दौर था जब मखदूम मोइनुद्दीन पूरे हैदराबाद पर छाए हुए थे।
हर तरफ उनकी ही चर्चा होती थी। अली सज्जाद जाफरी अपने उसी मजमून में आगे लिखते हैं, ये हकीकत है कि मखदूम की शख्सियत हैदराबाद पर छा गई है। निज़ाम की हुकूमत इस शख्सियत से डरती है, चूँकि ये इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई शख्सियत है, जिसको हज़ारों मुनज़्ज़म मजदूरों और नौजवानों तालिब इल्मों की तहरीक ने जन्म दिया है। निज़ाम की हुकूमत ने इस शख्सियत को कुचलने के लिए मखदूम और उसके दूसरे कारकुन साथियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। हैदराबाद कम्युनिस्ट पार्टी, आंध्रा कॉन्फ्रेंस और ट्रेड यूनियन कांग्रेस को गैर कानूनी जमातें करार दे दिया है और हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबारात और किताबों का दाखिला हैदराबाद में ममनू करार दे दिया है। लेकिन ये शख्सियत कुचली नहीं जा सकती, क्योंकि ये तन्हा मखदूम की नहीं बल्कि सारी दुनिया के महकूमों और मजबूरों, मजदूरों और दहकानों की शख्सियत है, जो पूरे कुर्रे अर्ज पर छाई हुई है। इसके मुताल्लिक मार्क्स और एंगल्स ने 1847 में अपनी मशहूर किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था, यूरोप के सिर पर एक साया मंडरा रहा है, कम्युनिज्म का साया। मखदूम तरक्की पसंद तहरीक के उन अलबेले और अनोखे शायरों में से एक हैं, जो सिर्फ शायर इनकलाबी नहीं हैं बल्कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली उन्होंने इनकलाब में हिस्सा लिया। तेलंगाना की तहरीक में बहुत दिन तक के उनको उस सिलसिले में रूपोज भी होना पड़ा। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जद्दोजहद, इनकलाबी जद्दोजहद करने वाले शायरों में से एक हैं मखदूम। इसीलिए उनकी शायरी में जो रूमानी अनासिर हैं वो इस तरह से ज़ाहिर होते हैं जो दूसरे शायरों में नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत कम कहा, लेकिन उनके यहाँ एक जो लय है, जो आहंग है, जो मौसीकी है, यानी जो उनकी नज़मों के अंदर संगीत की लय है, वो भी बड़ी हमें मुतासिर करती है। सिर्फ उसके अल्फाज ही हमें मुतासिर नहीं करते हैं, उनकी कही हुई बातें ही हमें मुतासिर नहीं करती हैं, बल्कि उनके पीछे छुपा हुआ उनका जो कर्ब है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो भी हमें नज़र आती है। इस सिलसिले में उनकी नज़्म जो मशरिक़ है, उसकी पूरी नज़्म जो है वो देखिए, पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक उसको उन्होंने किस तरह से कहा है। मैं 2-3 शेर उस नज़्म के पढ़ता हूँ। जहल, फाका, भीख, बीमारी, नजासत का मकान, जिंदगानी, ताजगी, अक्लो फरासत का मसान, एक कब्रिस्तान जिसमें हूँ नहा कुछ भी नहीं, एक भटकती रूह है जिसका मकान कोई नहीं। उसी का आखिरी शेर इस नज़्म का, इस ज़मीने मौत परवरदा को ढाया जाएगा, एक नई दुनिया, नया आदम बनाया जाएगा। आप देखिए कि उसने मशरिक़ का जो इस्तेसाल हो रहा था और जिस तरह से साम्राज्यवादी ताकतें जो है मशरिक़ का इस्तेसाल कर रही थी और मजलूम और उस मशरिक़ के रहने वालों, तमाम रहने वालों और ख़ास तौर से किसानों और मज़दूरों का जो इस्तेसाल किया जा रहा था, उसके ऊपर चोट करते हुए उन्होंने कितनी ज़बरदस्त अंदाज़ बाद एक नई दुनिया, एक नया आदम बनाया जाएगा। मखदूम अपने ज़माने का बड़ा खद्दावर, पुरकशिश और बाका आदमी था। उसने अपने अहद में जो कारनामे अंजाम दिए वो भी इतने ही दिलचस्प हैं। मखदूम मोहिउद्दीन ने कई यूरोपियन मुल्कों, सोवियत संघ और चीन की यात्राएं की। वे जब तक जिंदा रहे भारतीय साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बने रहे। अपने लेखन और काम से उन्होंने लाखों लोगों को मुतासिर किया। हैदराबाद की दर्जनों मजदूर यूनियन की रहनुमाई मखदूम एक साथ किया करते थे। आगे चलकर वे 100 से ज़्यादा यूनियनों के संस्थापक अध्यक्ष बने। मखदूम मोहिउद्दीन अपनी ज़िंदगी के आखिर तक पार्टी की नेतृत्वकारी इकाइयों में बने रहे। मेहनत कशों के लिए उनका दिल धड़कता था। मजदूर यूनियन एटक के जरिए वे मजदूरों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे।
کمیونسٹ پارٹی لیڈر کامریڈ ڈانگے نے مخدوم کی شاعری کے بارے میں کہا تھا، مخدوم شاعر انقلاب ہیں، مگر وہ رومانی شاعر سے بھی دامن نہیں بچاتا، بلکہ اس نے زندگی کی ان دونوں حقیقتوں کو اس طرح جمع کر دیا ہے کہ انسانیت کے لیے محبت کو انقلاب کے مورچے پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ کامریڈ ڈانگے کی یہ بات صحیح بھی ہے۔ مخدوم نے اکیلے انقلاب کی ہی نظمیں نہیں لکھیں، محبت میں ڈوبی ہوئی ان کی نظموں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ مثلا نظم آج کی رات نہ جا میں وہ اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زندگی لطف بھی ہے، زندگی آزار بھی ہے، ساز و آہنگ بھی، زنجیر کی جھنکار بھی ہے، زندگی دید بھی ہے، حسرت دیدار بھی ہے، زہر بھی، آب حیات لب و رخسار بھی ہے، زندگی خار بھی ہے، زندگی دار بھی ہے، آج کی رات نہ جا۔ پھر چھڑے رات بات پھولوں کی، رات ہے یا بارات پھولوں کی، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی۔ مخدوم کو فیض اور فیض کو مخدوم دونوں شاعر سمجھتے تھے کہ اصل شاعر یہی ہے۔ رات پھولوں کی، بات پھولوں کی، پھولوں پر غزل پوری موجود، اسی پہ غزل پہ کہی تھی، اس کے سر پر تھا تاج کانٹوں کا، تب وہ کرتا تھا بات پھولوں کی۔ وہیں اپنی ایک دیگر نظم انتظار میں ان کا انداز بیان کچھ اس طرح سے ہے، رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، اپنا ارمان بر افغندہ نقاب آئے گا، نظر نیچی کیے شرمائے ہوئے آئے گا، کاکلے چہرے پہ بکھرائے ہوئے آئے گا، میرے محبوب میری نیند اڑانے والے، میرے مسجود میری روح پہ چھانے والے، آ بھی جا تاکہ میرے سجدوں کا ارمان نکلے، آ بھی جا تاکہ تیرے قدموں میں میری جان نکلے۔ بنیادی طور پر وہ ایک عاشق مزاج انسان تھا، اس میں اس کی شخصیت میں لطافت تھی، کشش تھی اور خلوص تھا، جذبات میں پاکیزگی تھی۔ مخدوم محی الدین کا شمار اردو کے مشہور و معروف ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے۔ اردو میں ترقی پسند شاعری کا ذکر جب بھی کریں گے تو جہاں فیض کا نام آئے گا، مجاز کا نام آئے گا، کیفی اعظمی، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری کا نام لیا جائے گا، وہاں ان سب کے ساتھ مخدوم محی الدین کا نام ضرور آئے گا۔ مخدوم محی الدین شاعر تو تھے ہی بلا کے، لیکن ایک سماجی کارکن اور ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے بھی مخدوم محی الدین بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تلنگانہ موومنٹ میں بہت سرگرم رہے، کم لکھا ہے مخدوم محی الدین نے، لیکن اپنی شاعری سے اور اپنی نثر سے متاثر کیا ہے۔ مخدوم محی الدین زندگی میں سڑکوں پہ اتر کے سنگھرش کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے۔ وہ ان شاعروں میں نہیں تھے جو شاعری تو کسانوں اور مزدوروں کی جائے، لیکن اپنا قیام اپنے کمفرٹ زون میں رہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہے، لگژری کاروں میں رہے۔ مخدوم محی الدین کی زندگی اور ان کی شاعری، اس میں بڑی مطابقت ہے کہ آج بھی ہندوستان کی تمام یونیورسٹیز میں بی اے اور ایم اے کے نصاب میں مخدوم محی الدین پڑھائے جاتے ہیں، یعنی پاٹھیہ کرم کا حصہ ہیں۔ تو اگر پاٹھیہ کرم کا حصہ ہیں، بی اے اور ایم اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے جاتے ہیں، تو صرف ان کی شاعری میں اگر نعرے بازی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ آج تک ان پہ اتنی پی ایچ ڈی اور اتنی ایم فل کی ڈگریاں نہیں لکھی جاتی، ان پہ اتنے مضامین نہیں لکھے جاتے، ان پہ اتنا کام نہیں ہوتا۔ ایک بہت باریک سے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مزدوروں کسانوں کی بات کرنا یا زندگی میں کھردرا پن ہونا اور شاعری میں اس کھردرے پن سے بچ جانا، یہ مخدوم محی الدین کا بڑا کام تھا۔ 1982 میں ایک بہت مشہور فلم آئی تھی بازار،
बड़े चर्चे रहे उस फिल्म के। नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख वगैरह उसमें अदाकार थे। उसमें एक गीत था, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। इसका एक जिक्र सुन लीजिए कि ये नगमा कैसे लिखा गया। हैदराबाद के अंदर एक बहुत शानदार मुशायरा था। स्टेज पे मखदूम मोहिउद्दीन थे और तमाम बड़े शायर मौजूद थे। उसमें शकीला बानो भोपाली मौजूद थी, जो उस जमाने की बड़ी ही मशहूर कव्वाला थी। उनकी कव्वाली की बड़ी धूम हुआ करती थी। और दिल्ली से शाहिद अहमद दहलवी गए थे उसमें शरीक होने के लिए। उर्दू के जो पहले नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, उनके पोते थे शाहिद अहमद दहलवी। साकी बुक डिपो के मालिक, खुद बड़े अदीब थे और बड़े इल्म वाले लोग थे। स्टेज पे सामने बैठे हुए थे, शकीला बानो भोपाली बैठी थी। लोगों ने फूल माला से बहुत लाद दिया था। मुशायरा चल रहा था, एक शायर स्टेज पे अपना कलाम पढ़ रहे थे। शकीला बानो भोपाली बेख्याली में उन फूलों को तोड़ती थी और यूं बिखेर देती थी, उन फूलों को तोड़ती थी और यूं बिखेर देती थी सामने। कुछ देर बाद शाहिद अहमद दहलवी की नजर पड़ी तो देखा कि चारों तरफ फूल बिखरे पड़े हैं। जो फूल माला उन्हें दिया गया था उसे वो तोड़ तोड़ के यूं स्टेज पे बिखेरती रही। बेख्याली में उधर मुशायरा चल रहा है। तो शाहिद अहमद दहलवी ने कहा कि क्या बिछाती बिसात फूलों की, क्या बिछाती बिसात फूलों की। वो भी शायरा थी, बहुत अच्छी कव्वाला थी, सुखन फहम थी। उन्होंने फौरन पलट के जवाब दिया शाहिद अहमद दहलवी को कि बेमरवत है जात फूलों की। चूंकि जब ये दोनों के दरमियान ये बातचीत हो रही थी तो जो शायर स्टेज पे अपना कलाम पढ़ रहे थे उन्हें कुछ डिस्टरबेंस हुई होगी, तो उन्होंने मुड़ के इन लोगों को देखा और ये सारा मंजर मखदूम मोहिउद्दीन देख रहे हैं कि उनके फूल के बिखरा देने पे शाहिद अहमद दहलवी कह रहे हैं कि क्या बिछादी बिसात फूलों की, और पलट के ये जवाब दे रही हैं कि बेमरवत है जात फूलों की। और ये बात सुन के जो शायर स्टेज पे कलाम माइक पे पढ़ रहे हैं अपना, वो इन्हें मुड़ के देख रहे हैं। तो मखदूम मोहिउद्दीन ने कहा कि लोग सुनते हैं बात फूलों की। ये बात यहाँ हुई, खत्म हो गई, मुशायरा हुआ, बहुत शानदार हुआ। मुशायरे के बाद आधी रात के बाद सुबह का वक्त हो रहा था, फजर के वक्त, जब सभी अपने अपने घर को जा रहे थे तो रास्ते में मखदूम मोहिउद्दीन ने यह गजल कही थी कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, ये महकती हुई गजल मखदूम जैसे सहरा में रात फूलों की। बहुत ही मशहूर ये गजल, इसको खयाम साहब ने मौसीकी दी थी इसकी, और लता जी की आवाज में और तलत अजीज की आवाज में से रिकॉर्ड किया गया था। महकती हुई, ये महकती हुई गजल मखदूम। बहुत ही मकबूल हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि इस गजल के लिखे जाने के पीछे ये एक वाकया पेश आया था। मखदूम के बारे में सुर्ख सवेरा उनका मजमुआ शाया हुआ था। उसके तकरीबन 10 साल के बाद बिसाते रक्स शाया हुआ। गुले तर मखदूम की शायरी का नया मोड़ था, सुर्ख सवेरा से मुख्तलिफ। इसमें नज्म का अजीम शायर उसी बागपन के साथ गजल का शायर बनकर उभरा। उन दोनों के दिबाचे में मखदूम मोहिउद्दीन ने अपनी शायरी के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसे पढ़ना चाहिए। उससे ये भी अंदाजा होता है कि मखदूम मोहिउद्दीन की जो नाकिदाना बसीरत थी वो भी जबरदस्त थी। वो न सिर्फ ये कि शायर थे बल्कि शायरी को समझते थे, और जो शायरी की हमारी रिवायत है उसको भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने नज़में भी कही हैं, गजलें भी कही हैं, क़तात रुबाइयात भी हैं उनकी शायरी में, भरपूर शायरी की है। और इसके साथ साथ उन्होंने नस्र में भी कारनामे अंजाम दिए हैं, अफसाने लिखे हैं, इंशाइया लिखा है, मकाले लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, तर्जुमा किया है, और सियासी जिंदगी तो भरपूर थी ही। ऐसा बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का शायर था मखदूम मोहिउद्दीन। मोहब्बत के ऐसे नरम एहसास और गहरे जज्बात मखदूम की कई गज़लों और नज़मों में दिखाई देते हैं। इन एहसास और जज्बात से ही गज़ल कहलाती है। मखदूम मोहिउद्दीन ने न सिर्फ आज़ादी की तहरीक में हिस्सेदारी की बल्कि अपने तईं साहित्यिक और सांस्कृतिक दुनिया को भी आबाद किया। अवामी थिएटर में मखदूम के इंकलाबी नगमे गाए जाते थे। किसान और मज़दूरों के बीच जब इंकलाबी मुशायरे होते तो मखदूम उसमें आगे आगे होते। अली सरदार जाफरी, जोश मलिहाबादी, मजाज, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी के साथ मखदूम अपनी नज़मों से लोगों में एक नया जोश फूंक देते थे। उनकी अवामी मसरूफियत ज़्यादा थी, लिहाजा अदबी काम
कम ही हो पाता था। बावजूद इसके उन्होंने जितना भी लिखा वो अदबी शाहकार है। अपनी किताब गुलेतर की भूमिका में खुद मखदूम लिखते हैं, गुलेतर की नज़में गज़लें इंतहाई मसरूफियतों में लिखी गई हैं। यूं महसूस होता है कि मैं लिखने पर मजबूर किया जा रहा हूँ। समाजी तकाजे पुरअसरार तरीके पर शेर लिखवाते रहे हैं। जिंदगी हर लम्हा नया तूर, नई बरक़े तजल्ली है और मुझे यूं एहसास होता है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। उर्दू अदब को अपने कलाम से इतना आबाद करने के बाद भी मखदूम जैसी सादगी और सरलता कितने शायरों में मिलती है। सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसात रक्स मखदूम के कलाम के संकलन हैं, जिसमें उनकी नज़में व गज़लें संकलित हैं। बिसात रक्स के लिए उन्हें साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मखदूम की मशहूर नज़में फिल्मों में भी इस्तेमाल हुईं। आपकी याद आती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही। जरा दूर से मोड़ पर दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मन में मेहनत कशों के शोषण और पीड़ा को अपनी नज़मों में आवाज़ देने वाले अवामी शायर मखदूम मोहिउद्दीन ने 25 अगस्त 1969 को महज 61 साल की उम्र में इस दुनिया से अपनी रुखसती ली। जैसे ही एयरपोर्ट पे मैयत पहुंची, वहाँ पर हजारों हमारे वर्कर्स, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के वर्कर्स, शायर, अदीब, फनकार, गुलकार, सारे लोग, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग पूरे वहाँ पर मौजूद थे। मखदूम मोहिउद्दीन को इस दुनिया से विदा हुए एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन वह अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ही नहीं, पूरे मुल्क में उसी शिद्दत और मोहब्बत से याद किए जाते हैं। उनका नाम हमेशा एहतराम से लिया जाता है। मशहूर जर्नलिस्ट, फिल्मकार और अफसाना निगार ख्वाजा अहमद अब्बास ने मखदूम की शानदार शख्सियत को बयां करते हुए क्या खूब कहा है। मखदूम एक धधकती ज्वाला थे और ओस की ठंडी बूंदें भी। वे क्रांति के आवाहक थे और पायल की झनकार भी। वे कर्म थे, वे प्रज्ञा थे, वे क्रांतिकारी छापामार की बंदूक थे और संगीतकार का सितार भी। वे बारूद की गंध थे और चमेली की महक भी। कि मखदूम ने हमारे शऊर को संवारा, मखदूम ने हमको वो बशारत दी, वो बसीरत अता की और हमने एक ख़ास अंदाज से अपने जहन को परवरिश दी। दोस्तों, ये रही डॉक्यूमेंट्री इंकलाबी शायर मखदूम मोहिउद्दीन पर। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा और हमें लिखिएगा कि आपकी राय क्या है। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री लेकर के आते रहेंगे। शुक्रिया।